Hello everyone. Welcome to the Bihar Teachers History Makers. मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा. I am Dr. Shobha Kumari. Today we will carry on with our lesson Indian Civilization and Culture by Mahatma Gandhi. Before starting our lesson today, let's have the thought of the day, which is never give up on what you really want to do. हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. जिस काम को हम तहे दिल से करना चाहते हैं उसमें हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए. सो विद दिस लेट्स कंटिन्यू with our lesson. For that I will show you the page again as usual, so that by which you will be able to understand what I explained clearly. This is the page. We have done till para 16. Further, from para 17 we will do today. Further, Gandhiji says that all these things which we have discussed till now has kept Hinduism alive. It has made Hinduism very strong. There many civilizations we had read and done this also, discussed about the other civilizations in para 2 also, 1 or 2. Again he says that many civilizations came and then diminished, or they rose and then had the fall or decline. That is the civilization of Babylonian, Syrian, Persian, Egyptian civilizations. All these came and went away. If you can have a look around you, you can also see where there is no more the glory of Rome and Greek civilization is no more. And Gibbon was an English historian who wrote about the Roman Empire. So he says, where is Gibbon's ancient Rome, or where is the glory which he had written in his book? Everything has gone, but our civilization is still as it was. Again, then coming to India, he says that India is our ancient India is still living. Again, he says that okay, people told that there are dung heaps and many rich treasures are buried under them in India, and I think that is the reason why India is surviving till now, because our civilization was very different from others. We did not go after or chased the materialism, but our civilization taught us to be spiritual. I will read this line number 20 for you. Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants and self-denial. Here again it is very clear that our civilization lays stress upon restricting our wants. हमें खुद पे हमारी चाहतों पे नियंत्रण रखना हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है. मना कर देना, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसे हम खुद को मना कर सकते करें, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए. यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है. और अगेन ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन or sorry, European civilization were very good. They suited the Europeans. But for India, if people of India tried to follow it or tried to copy it, they will get ruined. Ruined माने बर्बाद हो जाना. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever good and capable of assimilation by us. ऐसा नहीं है कि कुछ अगर अच्छाइयाँ हैं किसी civilization या culture में तो उसे हम assimilate करें या उसे एकत्र करके हम ले लें by us, as it does not only also mean that even the Europeans will not have to
पार्ट विथ वॉट एवर। और ऐसा ये भी, इसलिए ये भी नहीं है कि यूरोपियंस भी अगर उनमें कुछ अगर गलत है या कुछ खराबी है किसी के उनके सिविलाइजेशन में, तो उसे वो छोड़ दें। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सभी गलत और सही सभी को अपनाते हुए आगे बढ़ें। और ये जो इंसेसेंट यानी लगातार जो सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट और मल्टीप्ली उसका चाहत करना मटेरियलिज्म के लिए, ये सुख सुविधाओं के लिए, और फिर उनकी चाहतों को और बढ़ाते जाना, इज सच एन ईवल दैट आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। ये जो वेस्टर्न कल्चर में है चीज़ों के पीछे भागना और उन अपनी चाहतों अपने डिज़ायर को बढ़ाते जाना, इन्हें एक बार कभी न कभी अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा और रीमॉडल करना पड़ेगा, अगर उन्हें पेरिश नहीं होना है, उन्हें ख़त्म नहीं होना है। तो अंडर द वेट ऑफ कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और उसके ग़ुलाम बनते जा रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए उन्हें अपनी कल्चर के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही ही हो, लेकिन लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो हम गांधी जी के बारे में जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये बात अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में लिख लेना चाहिए कि प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग मतलब सादा जीवन, उच्च विचार को हमें अपनाना चाहिए। और ये कह रहे हैं टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड विथ फ्यू हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क in a vain search after living high of missing high thinking. Civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate voluntary restriction of wants. He says that civilization जो है वो अपने वांट्स जो है उसको मल्टीप्लाई करने में, अपने चाहतों को, अपनी चीज़ों को, ज़रूरतों को इसको बढ़ाने में नहीं है, मगर अपनी चाहतों को रेस्ट्रिक्ट करने में, अपनी चाहतों को नियंत्रित करने में, स्वेच्छा से, वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन में स्वेच्छा से उससे नियंत्रण में रखने में ही एक सभ्यता की एक पहचान है। और यही हमें कंटेंटमेंट देता है, संतोष देता है, सच्ची खुशी देती है हमें। और अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी। ठीक है, भौतिक शांति, सुख शांति ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक, हद से ज़्यादा हो जाने पे वो एक हेल्प के बजाय एक इट बिकम्स अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स वो एक रुकावट बन जाता है। तो ठीक है, हमें सुख सुविधा आराम को अगर अपनाना भी है तो एक हद तक अपनाना है, वरना वो इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। देयरफॉर द आइडियल क्रिएटिंग an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. He says that so अपनी इच्छाओं को बढ़ाना और उन्हें फिर सेटिस्फाई करना, पूरा करना, दिस इज़ ऑल एक जाल है, एक ट्रैप है, जो कि ठीक नहीं है। और दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, हमारा जो भौतिक ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना, इवन इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन डेड स्टॉप। कभी तो उसका अंत होना चाहिए बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपचुअसनेस। जो विलास, अगर हम अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर को रोके नहीं, कंट्रोल नहीं करें, तो ये एक विलासिता का रूप ले लेगा और अनएंडिंग होगा। तो इसलिए मनुष्य को अपने ऊपर, अपने डिमांड्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि दे डू नॉट हिंडर हिम इन द सर्विस ऑफ, मानवता की सेवा में, मानवता के सर्विस में उसकी अपनी इच्छाएं जो हैं वो रुकावट ना बने और उसे हमेशा एक नया ऊर्जा प्रदान करते रहें। विद दिस वी come to the end of our first lesson. In the next video we will do with the question and answers and other doubts, and you can see there are boxes and there are questions in the boxes like this, so you can take the screenshot
of the box, and you can at home you can do the fill in the blanks on your own, and then in the next class we will discuss the fill in the blanks and the question answers. So till then, take care. Bye.